Hello everyone, I welcome you all once again to this very important session for your upcoming CDS examination. This is a part of your revision series, and today we will be looking at the Governor Generals, Viceroys and their important works that they had completed during their tenure. So with this class you will be able to establish a timeline which will help you to solve questions of history in general as well, right? So without wasting our time, let us start with the first person. The first person that we read in this list is Warren Hastings. Warren Hastings was the first governor of Bengal. Right? And let us look at a few important things that he did during his tenure. The first one is Regulating Act of 1773. Regulating Act of 1773. और हमें पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, राइट? सो दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ हिज टेन्योर. कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे कि पहला सुप्रीम कोर्ट किसकी टाइम पे आया था. सो द आंसर शुड बी वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट? द सेकेंड थिंग वॉज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. दिस ऑल्सो वॉज ब्रॉट अबाउट इन द टाइमिंग ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स. Also, an important thing is Rohilla War. Rohilla War of 1774 also occurred during the timeline of Warren Hastings, including the first Maratha War. We know that there were Maratha wars that had taken place between the Britishers against the Marathas. So the first Maratha War happened during the timing of Warren Hastings, and this ended with the Treaty of Salbai, as we all know. ट्रीटी ऑफ सालबाई से इसकी एंडिंग हुई थी. तो ये भी हमें याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट? द ईयर इज 1782. एंड ऑल्सो द सेकेंड मैसूर वॉर वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, lasting from a period of 1780 to 84, right? So these are a few important things associated with Warren Hastings. The most important being that he was the first governor of Bengal, right? And you have to remember the names of all the important tasks such as Treaty of Salbai, the second Mysore War, first Supreme Court. All of these things are important. This is a very crucial class. मैं आपको सिर्फ क्रक्स वाला मटीरियल ही दूंगी इसमें, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, right? Because आपका एग्जाम is coming closer. This is just your revision series. The second person that we will read is Lord Cornwallis. Lord Cornwallis followed Warren Hastings. Now let us look at the important things that happened during his time. The first being third Mysore War. Second हमने पढ़ लिया Warren Hastings के टाइम पे हुआ था. Third happened during his tenure. This ended with the Treaty of Seringapatam. सेरिंगापट्टनम की ट्रीटी साइन हुई थी, टाइमिंग बीइंग 1792, राइट? सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड इस्टेब्लिश किया था, राइट? सो वेरी ऑब्वियस दिस हैपेंड ऑल्सो ड्यूरिंग हिज टेन्योर. एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट. ये एज अ वन लाइन क्वेश्चन भी आपको आ सकता है. परमानेंट सेटलमेंट वॉज ब्रॉट अबाउट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आई कैनॉट टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज. ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट? नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड पर्सन दैट वी विल बी रीडिंग इन दिस लिस्ट. थर्ड इज लॉर्ड वेलेस्ले. Also very important, let us look at a few things that he introduced. First being subsidiary alliance, extremely important. Permanent settlement जैसे ये भी बहुत important है. लॉर्ड वेलेस्ले लेके आए थे subsidiary alliance in 1798, right? Extremely important. Your fourth Mysore War was conducted during the time of Lord Wellesley. And the second Maratha War. फर्स्ट हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, सेकेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले, टाइमिंग बीइंग 1803 to 1805, राइट? दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो लॉर्ड वेलेस्ले से कनेक्टेड हैं. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मैं आपको वही मटीरियल दूंगी जो इस टाइम पे आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, राइट? नथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट,
All of this is important, right? Next we have our Lord Minto 1. Lord Minto 2 थे. ये पहले वाला came during the timeline of 1807 to 1813. दूसरे हैं लॉर्ड मिंटो जो लेके आए थे मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, राइट, 1909 में. तो ये उनसे अलग हैं. दिस इज समबडी एल्स. इनमें एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ अमृतसर. इन्होंने साइन की थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह, टाइमिंग बीइंग 1809. दिस वॉज अ वेरी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन टू अस बाय लॉर्ड मिंटो. ये इनके टेन्योर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, ये हमें याद रखना है. नाउ आफ्टर दिस वी कम विद अ फिफ्थ important person, that is Lord Hastings. Lord Hastings. Lord Hastings के टाइम पे याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं? टाइमिंग इज़ 1813 to 1823. So the important things that happened during this time, first being Third Maratha War. Third Maratha War. And very very important establishment of Rayotwari system. Rayotwari system. ये तीन सिस्टम हमें याद रखने हैं, परमानेंट सेटलमेंट, योर रयौतवाड़ी सिस्टम, और जो अभी अभी हम ऊपर पढ़ के चुके हैं सब्सिडरी अलायंस. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये आपको याद रखना है डेफिनेटिवली, राइट. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स. रयौतवाड़ी सिस्टम केम इन 1820. दीज आर अ फ्यू थिंग्स एसोसिएटेड विद लॉर्ड हेस्टिंग्स. Now we come to a very very important point, the sixth one, that is Lord William Bentinck. Lord William Bentinck, extremely important. Why? Because he was the first Governor General of India. First Governor General of India. Lord Hastings was the last Governor of Bengal. ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है. Sorry, this is not relevant over here. William Bentinck was the last Governor of Bengal and also the first Governor General of India, right? Please make this correction. So the important things associated with Lord William Bentinck, first and also very important, abolition of sati. Abolition of sati. This happened in 1829, right? Very very important. आपसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन. एंड इनके टाइम पे हम लेके आए थे चार्टर एक्ट. चार्टर एक्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 केम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक. एक्सट्रीमली important, right? He was followed by Lord Hardinge. Sorry, this is a little bit of a spelling mistake. Lord Hardinge 1. Very important. इनके टाइम पे क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इनके टाइम पे हुआ था. दिस लेड टू द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर. ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था आफ्टर द एंडिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, टाइमिंग बीइंग 1848, राइट. तो ये आपको याद रखना है. नाउ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, लॉर्ड डलहाउजी. बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है. प्लीज़ इनकी जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है. फर्स्ट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ही इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनके सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं. लॉर्ड डलहाउजी इन हिमसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके. नेक्स्ट इज़ योर वुड्स डिस्पैच. वुड्स डिस्पैच इनके टाइम पे आया था 1854. दिस इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन. इसके ऊपर आपको एफकैट में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. वेरी इंपॉर्टेंट. देन योर फर्स्ट रेलवे लाइन. फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड डलहाउजी इन 1853. He also established your first telegraph, and also he established the public works department. Very very important. ये बहुत important point है, right? These points you have to remember. The tenure of Lord Dalhousie was from 1848 to 1856. ये आपको थोड़ा timeline establish करने में भी help करेगा, right? Now the ninth person that we will be reading in this list is Lord Canning. Lord Canning. Lord Canning was the first Viceroy of India. First Viceroy of India. Extremely important. बहुत important point है. इनके टाइम पे हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857.
जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, राइट। ही इस्टेब्लिश्ड 3 यूनिवर्सिटीज़, 3 यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। कहाँ कहाँ पे? कैलकटा, देन योर मद्रास एंड फाइनली यू हैव योर बॉम्बे। इन 3 जगहों पे इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की थी और इनके टाइम पे आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था, ईयर बीइंग 1861। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाइसरॉय थे हमारे, राइट। लॉर्ड कैनिंग वॉज फॉलोड बाय लॉर्ड लिटन। योर 10th इज लॉर्ड लिटन। 1 second, just let me put this to full screen. So your 10th is Lord Lytton, right? लॉर्ड लिटन की इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था 1878 में। ही वॉज नॉट अ वेरी लिबरल वाइसरॉय, राइट। तो इन्होंने काफ़ी रिप्रेसिव रिफॉर्म्स ये लेके आए थे। देन इन्हीं के टाइम पे क्वीन ने एज्यूम किया था टाइटल, कौन सा? केसर हिंद। केसर हिंद का टाइटल क्वीन ने एज्यूम किया था एट द टाइम ऑफ लॉर्ड लिटन, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लॉर्ड रिटन के बाद आए थे लॉर्ड रिपन, अ वेरी लिबरल वाइसरॉय, राइट। इन्होंने बहुत लिबरल काम किए थे, जैसे कि इन्होंने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन पास करके गए थे उसको इन्होंने रिपील कर दिया था। ही रिपील्ड द प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रिपील कर दिया। इनके टाइम पे हुई थी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ईयर बीइंग 1882। एंड इनके ही टाइम पे आया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड था, राइट। ऊपर हमने वुड्स डिस्पैच पढ़ा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, अभी हम पढ़ रहे हैं हंटर कमीशन। लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, ऑल्सो रिलेटेड विद एजुकेशन, राइट। लॉर्ड रिपन वॉज फॉलोड बाय लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था क्या? ये तो आप सबको पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस was established during the tenure of Lord Dufferin, year being 1885. extremely important, right? ये पॉइंट आप सबको याद रखना है। लॉर्ड डफरिन के बाद आए लॉर्ड कर्जन। नंबर 13 पे हैं हमारे पास लॉर्ड कर्जन, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइसरॉय। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ इस्टेब्लिश किया था। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बीइंग इनके टाइम पे हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन इनके टाइम पे हुआ था, ईयर बीइंग 1905। और क्या क्या लेके आए थे लॉर्ड कर्जन? और जो चीज़ें ये लेके आए थे वॉज द पुलिस कमीशन। पुलिस कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ कमीशन। 2 कमीशन आए थे इनके टाइम पे, पुलिस कमीशन एंड यूनिवर्सिटीज़ कमीशन। और पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, राइट। देन योर नंबर 14 इज़ लॉर्ड मिंटो 2। मैंने बोला था आपको 2 नाम हैं लॉर्ड मिंटो, 2 अलग अलग लोग हैं। एक हमने ऊपर पढ़े थे और एक ये हैं लॉर्ड मिंटो 2। इनके टाइम पे सूरत स्प्लिट हुआ, द वेरी फेमस सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907। ऑल्सो और क्या क्या चीज़ें, इनके टाइम पे मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश ड्यूरिंग हिज टेन्योर, टाइमिंग बीइंग 1906। और ये लेके आए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके आए थे ये, राइट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो हमारी थी वो इनके टाइम पे आई थी 1905 to 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो इसको आपको याद रखना है। लॉर्ड मिंटो 2 के बाद आगे हम चलते हैं लॉर्ड हार्डिंगे पे। लॉर्ड हार्डिंगे ये क्या लेके आए थे?
इनके टाइम पे हुई एनलमेंट हुई किस चीज़ की? पार्टीशन ऑफ बंगाल की। बंगाल को सेपरेट किया गया था ना, तो उस जो वो रिफॉर्म था उसको कैंसिल कर दिया गया। एनलमेंट हुई उसकी इन 1911, राइट। इन्हीं के टाइम पे हमारी जो ट्रांसफ़र है कैपिटल की कैलकाटा से दिल्ली हो गई। कैलकाटा से हमारी दिल्ली को कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी। ईयर सेम 1911, राइट। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हिंदू महासभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ इनके टाइम पे। हिंदू महासभा वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंगे, टाइमिंग बीइंग 1915। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रही हूँ बिकॉज इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो आप ऑप्शंस एटलीस्ट एलिमिनेट करने में आपकी ये मदद करेंगे। नंबर 16 यू हैव लॉर्ड केल्म्सफोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके टाइम पे क्या हुआ? सबसे पहले लखनऊ पैक्ट इनके टाइम पे साइन किया गया 1916 में। हमें पता है कि कांग्रेस में स्प्लिट हुई थी, तो उस स्प्लिट को रिवर्स किया गया दोबारा फिर से। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स जॉइंड ईच अदर, उसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। वो 1916 में हुआ। इनके टाइम पे आया चंपारण सत्याग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट। चंपारण सत्याग्रह इनके टाइम पे हुआ 1916 में। इन्हीं के टाइम पे आया रॉलेट एक्ट 1919, टाइमिंग हम सबको पता है। जलियांवाला बाग मसैकर इनके टाइम पे हुआ। जलियांवाला बाग का जो मसैकर था वो भी 1919 में इन्हीं की टाइमिंग में हुआ। और तभी शुरू की गई थी नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप कोई भी मिस नहीं कर सकते पॉइंट यहाँ पे। ये सारी चीज़ें लॉर्ड केल्म्सफोर्ड के टाइम पे इस्टेब्लिश की गई थी। नंबर 17 यू हैव लॉर्ड रीडिंग, राइट। तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे क्या हुआ? हमने देखा ऊपर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। इनके टाइम पे हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में, एज वी ऑल नो। दिस लेड टू द विड्रॉल, इससे विड्रॉल हो गया किस चीज़ का? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल हो गया, राइट। वी ऑल नो दिस। इनके टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ किस चीज़ का? स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू की वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंगे। एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, काकोरी ट्रेन रॉबरी, इट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ लॉर्ड रीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 18 वी हैव लॉर्ड इरविन, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया साइमन कमीशन, टाइमिंग 1927, राइट। इन्हीं के टाइम पे दी गई थी नेहरू रिपोर्ट, पब्लिश की गई थी 1928 में। देन योर लाहौर सेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार उठी थी, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ 1929। दिस इज 7, 1929 का लाहौर सेशन इनके टाइम पे हुआ। देन योर डांडी मार्च प्लस सिविल डिसओबीडियंस, दोनों चीज़ें लॉर्ड इरविन के टाइमिंग में हुई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड इरविन एंड दिस लेड टू द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यू कैन नॉट मिस एनी पॉइंट। नंबर 19 पे वी हैव लॉर्ड वेलिंगटन। इनके टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई? लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे आया कम्युनल अवार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड वेलिंगटन। सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके टाइम पे हुई थी। 3 ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट इरविन के टाइम पे, सेकेंड एंड थर्ड लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे। देन योर पूना पैक्ट 1932 का, जो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुआ था, हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड वेलिंगटन।
and this also led to the passing of Government of India Act of 1935. Very, very important. Then your number 20, Lord Linlithgow. Lord Linlithgow was इनके टाइम पे अभी हम देखते हैं क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट हुई. सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की इस्टेब्लिशमेंट इनके टाइम पे हुई 1939 में. देन योर ऑगस्ट ऑफर, जो ऑगस्ट ऑफर था 1940 का, वो इनके टाइम पे लाया गया था. देन इंडियन नेशनल आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट हुई. इंडियन नेशनल आर्मी was established during the time of Lord Linlithgow. क्रिप्स मिशन भी इनके टाइम पे ही आया था 1942 में. एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट was started. क्विट इंडिया मूवमेंट was started. Very important, right? Moving ahead, we come to Lord Wavell. Number 21 is your Lord Wavell. लॉर्ड वेवेल के टाइम पे क्या हुआ? सबसे पहले CR फॉर्मूला जो सी राजा गोपालचारी लेके आए थे वो प्रेजेंट किया गया 1944 में. और इनके टाइम पे जो क्लेमेंट एटली थे, द PM, ही अनाउंस्ड द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल अनाउंस कर दिया गया था, राइट. एंड फाइनली वी कम टू लॉर्ड माउंटबैटन. इनके टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था. रेडक्लिफ कमीशन लेके आए थे. रेडक्लिफ कमीशन जो था वो इनके टाइम पे आया था. हमारी इंडिपेंडेंस हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड माउंटबैटन. ही ऑल्सो बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. अगर आपसे पूछा जाए पहले वाइसरॉय कौन से थे इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिपेंडेंट इंडिया में, दैट वाज लॉर्ड माउंटबैटन. बट द फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय वाज सी राजा गोपालचारी, फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया. और 1950 में फाइनली इस पोस्ट को परमानेंटली अबॉलिश कर दिया गया. This post was permanently abolished, right? So 1950 तक we saw a long race of governor generals and your viceroys, and मैंने आपके साथ उनके सारे important works जो हैं वो डिस्कस किए हैं. आई होप इस सेशन से आपको काफ़ी मदद मिली होगी अपनी टाइमलाइन इस्टेब्लिश करने में. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल विद a trick to learn the names of all the viceroys and governor generals in a systematic manner that I will be sharing on my Telegram channel. The link of my Telegram channel will be in the description box. You all can join me over there and आपको ये additional information वहाँ पे मिल जाएगी. Also, please like, share and subscribe my channel for more such content ताकि आपकी revision में help हो सके, right? And I also conduct daily quizzes on my Telegram channel, English की भी और GS की भी. You can join me on my Telegram channel so that आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और revision आपकी अच्छे से होती रहे, right? I wish you all the very best. And thank you so much.